વલ્લભાધીશ કી જય હો. ખૂબ સુંદર મંગલાચરણ સાંભળીને આનંદ આવી ગયો. દંડવત કૃષ્ણાય નમઃ. ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ તમારા બધા જ ગ્રુપના જે વૈષ્ણવો છેલ્લા મને એમ છે વર્ષથી તમારું આ ગ્રુપ ચાલી રહ્યું છે કે વધારે સમય થયો ઓનલાઈન સત્સંગનો. તમારો મ્યુટ છે, અવાજ નથી આવતો. એટલે આપણે વસંત પંચમી ચાલુ એટલે હવે વસંત પંચમી આવશે ત્યારે 2 વર્ષ થશે. આપણે 2 વર્ષ પૂરા થશે. સરસ સરસ. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને ખૂબ આશીર્વાદ છે કે તમારું ગ્રુપ ખૂબ જ આગળ વધે અને આ સત્સંગ એટલો ઉત્તમ આ કલિકાલમાં આપણા માટે એક આશીર્વાદ રૂપ છે કે જે ઘરે બેઠા આપણે આનો આનંદ લઈ શકીએ છીએ. અને અમને પણ આ બધા પુસ્તકો ખોલીને વાંચન કરવાનો તમે બધા પ્રેરિત કરો છો એના માટે અમે ખૂબ ખૂબ આનંદ છે આ વસ્તુનો. એમ કે તમને બતાવવા માટે શ્રી વલ્લભ અમને એવી પ્રેરણા કરે છે, અમને એવી આજ્ઞા કરે છે કે ભાઈ તમે પણ કંઈક વાંચો તો આમાં તમને પણ અમારો પણ કંઈક ઉદ્ધાર થાય. એમ અસીમ કૃપા થઈ વલ્લભ વિચાર્યું અને અસીમ કૃપા થઈ ત્યારે આપ પધાર્યા છે. એટલે અમારા આવું ભાગ્ય ખૂબ 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 બધા જ તમારા પરિકરના વૈષ્ણવોને ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ અને બીજા પણ જે વૈષ્ણવો આમાં જોડાય એવી હું ઈચ્છા રાખું છું. આપણે અઠવાડિયામાં 3 દિવસનો સત્ર રાખીશું સળંગ. હવે આમાં એવું છે કે આપણે વિરામ રાખવો નથી, એટલા માટે હું વિસ્તારથી જ વર્ણન કરીશ. જે 3 દિવસની શિબિરમાં હું ખાલી પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ લઉં છું એવું નહીં કરતા, જે રીતની શ્રી સુબોધનીજી ખુલાસાબદ્ધ ભલે એક શ્લોક તો એક શ્લોક એવી રીતે લેવાય છે, એમાં એવી જ રીતે અહીંયા પણ શ્રી ગોકુલનાથજી કૃત જે શ્રી સુબોધ જે સર્વોત્તમજીની ટીકા છે, બૃહદ ટીકા, એ ટીકાનું જ આપણે વાંચન ચાલુ કરીશું. એમાં વચ્ચે વચ્ચે જે રીતે વલ્લભ સાખીનો સમન્વય થશે એ વલ્લભ સાખી પણ આપણે લઈશું. પણ વિશેષ કરીને શ્રી સર્વોત્તમજી ઉપર જ મારો ભાર રહેશે કે જેનાથી આપણે મૂળ શ્રી મહાપ્રભુજીનું સ્વરૂપ જાણી શકીએ. વલ્લભ સાખી પણ એનો જ સાર છે, એમાં પણ એ જ આપણને આપ્યું છે. એટલે બંનેનો સમન્વય જ્યારે જ્યારે પણ થશે ત્યારે આપણે એને સંકલન લઈને અને એનો આનંદ પણ લઈશું. પણ ખાસ સર્વોત્તમજી સમજવાનો આગ્રહ આપણને બધાને રહે અને આપણે એ સમજીએ તો શ્રી વલ્લભનું સ્વરૂપ જાણીશું. કારણ કે શ્રી હરિરાયજી આપ આજ્ઞા કરે છે કે પુષ્ટિનું ફળ શ્રી વલ્લભ જ છે. એટલે શ્રી વલ્લભના સ્વરૂપને જાણીએ તો આપણે વિશેષ કરીને આનંદથી આ માર્ગમાં આપણે રહી શકીશું. પ્રભુના સુખનો વિચાર કરી શકીશું, પ્રભુના સુખ માટે મનોરથો કરી શકીશું. તો એ બધા જ કાર્ય બદલ આપણે ખાસ કરીને શ્રી મહાપ્રભુજીના સ્વરૂપને જાણવું જરૂરી છે. પ્રભુ કૃપાથી આનો પ્રારંભ કરીએ. શ્રી મહાપ્રભુજીનું મંગલાચરણ એક લઈ અને પછી શ્રી ગોકુલનાથજીએ જે સર્વોત્તમજીની શરૂઆતમાં જે મંગલાચરણ લીધું છે એ મંગલાચરણ લઈ એનો ભાવાર્થ સમજી અને પછી આપણે સર્વોત્તમજીની આગળ શરૂઆત કરીશું. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય હો. સૌંદર્યમ નિજ હૃદગતમ પ્રકટિતમ સ્ત્રી ગૂઢભાવાત્મકમ પુનરૂપં ચ પુનસ્તદંતર્ગતમ પ્રાવિવિશત સ્વપ્રિયે સંશ્લિષ્ટા ઉભયોર્બભૂરસમય કૃષ્ણો હિ યત્સાક્ષિતમ રૂપમ તત્રિતયાત્મકમ પરમભિ ધ્યેયં સદા વલ્લભમ ધ્યેયં સદા વલ્લભમ. શ્રી મહાપ્રભુજીની કૃપાથી આપના સ્વરૂપને જાણી, શ્રી ગુસાઈજીની કૃપાથી આપના સ્વરૂપને જાણીને આપણે આગળ વધીએ. શ્રી ગોકુલનાથજી કૃત જે ટીકા છે હું આપનું પુસ્તક અક્ષરશઃ લેવા ઈચ્છું છું. અને આજે શ્રી ગોકુલનાથજીનો ઉત્સવ છે એટલે શ્રી ગોકુલનાથજીના ઉત્સવ નિમિત્તે ખૂબ ખૂબ ફરીથી વધાઈ છે બધાને. અને શ્રી ગોકુલનાથજીના દર્શન ચિત્રજીમાં પ્રાપ્ત થાય છે. સુંદર. આપ જ સન્મુખ બિરાજીને મને બધું જે આપ સુઝાવે છે એ પ્રમાણે આપની વાણીને
સાર્થક કરવાનો પ્રયત્ન કરીશ અને મારી વાણી પવિત્ર કરીશ. श्री हरि श्री गोपीजन वल्लभाय नमः. श्री गुसाई जी कृत श्री सर्वोत्तम स्तोत्र की उनके चतुर्थ पुत्र श्री गोकुलनाथ जी कृत ब्रज भाषा में बृहत टीका. હવે આ ટીકાનો ઉલ્લેખ બધો બ્રજ ભાષામાં થશે એટલે હું જેમ શ્રી સુબોધનીજીનું વર્ણન બ્રજ ભાષામાં કરું છું એમ જ આનું પણ વર્ણન કરવાની મારી ઈચ્છા છે કે એ સુંદર લાગે, બહુ ગમે છે વ્રજ ભાષા તો. હા વ્રજ બસ ભાષામાં જ બસ કરો. તો બસ એ પ્રમાણે કરીશું એમ. अब श्री गोकुलनाथ जी कहते हैं जो श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के अति अलौकिक अष्टोत्तर शतनाम जाके भीतर हैं, ऐसे जो सर्वोत्तम ग्रंथ को सो श्री गुसाई जी श्री विठलनाथ जी आप प्रकट किए हैं. सो सर्वोत्तम की टीका श्री गोकुलनाथ जी आप जीवन के अनुग्रह करनार्थ तथा आप अपने अनुभव करनार्थ टीका करवे को प्रवृत्त भय हैं. तामे प्रथम मंगलाचरण 3 श्लोक सो करत हैं. यहाँ श्री गोकुलनाथ जी को जो गोकुलनाथ जी कह रहे हैं कि श्री आचार्य जी और श्री गोसाई जी के आचार्य जी महाप्रभु जी के अलौकिक अष्टोत्तर शत नाम यानी अष्टोत्तर शत यानी 108 नाम 108 नाम जो जाप ग्रंथ के अंदर विराजमान है वह ग्रंथ को वर्णन वह ग्रंथ के टीका श्री गोसाई जी ने ग्रंथ प्रकट कियो है तो वाकी टीका आप श्री गोकुलनाथ जी हम जीवन के लिए कृपा करवे के लिए और स्वयं अनुभव करना यानी आप स्वयं भी इन नामन को अनुभव करते भय ये लीलान को अनुभव करते भय यहाँ पे आप बाकी टीका करवे के लिए प्रवृत्त भय हैं. में सबसे पहले आपने 3 श्लोक सुन यहाँ पे मंगलाचरण दियो है वो मंगलाचरण ले में और वह मंगलाचरण को भावार्थ अपन को खास समझवे को है. देखो जहां जहां भी ग्रंथ लिखवे वाले जैसे श्री हरिराय जी ने प्रकट कियो है या श्री पुरुषोत्तम जी ने प्रकट कियो है या स्वयं श्री गुसाई जी ने भी प्रकट कियो है तो आप सबसे पहले जैसे श्री गुसाई जी हैं तो आप अपने बड़े मतलब श्री महाप्रभु जी को दंडवत करके उनको विनती करके कि आप हमको सिखाओ या आप हमको बताओ या आपकी कृपा से हम करें ऐसे करके आप विनती करे हैं और आज्ञा लेके और फिर कार्य आगे चालू करे हैं तो आपकी कृपा से वो कार्य फलीभूत हुए हैं. तो यहाँ पे भी मैं श्री महाप्रभु जी श्री गोसाई जी श्री गोकुलनाथ जी के चरणारविंद में और श्री हरिराय जी के चरणारविंद में मैं दंडवत करते हुए विनती करूं हूं कि आगे जो भी वर्णन आवे आपकी कृपा से आप जो समझाना चाह रहे हो वह प्रकार को भाव वह प्रकार की प्रेरणा आप मुझको हृदय में दो और आप ही अपनी वाणी सु हम सबको या को रसपान कराओ. तो अब यहाँ पे सबसे पहले श्री गोकुलनाथ जी को मंगलाचरण है. यहाँ पे नत्वा पितृम पदाम भोज सर्वाभीष्ट प्रदायकम तत्प्रोक्ताचार्य नामानि विवरिष्ये यथा मतिः यद्यपि योग्य एवाहम तन्नाम विवृत्तौ स्वतः स्वीयत्वेनैव कृपया योग्यतां मय दास्यति इति विश्वासितो नूनं प्रवृत्तो हम न चान्यथा अतः त एव शरणं नमः सर्वार्थ सिद्धये. याको अर्थ श्री गोकुलनाथ जी कहते हैं मेरे पितृ जो श्री गुसाई जी तिनके पदाम भोज कहिए यानी 2 चरणारविंद अरविंद और अम्भोज कहिए कमल के नाम है अरविंद और अम्भोज. तो ये कह रहे हैं कि 2 चरणारविंद 2 पदाम भोज जो है आपके 2 चरणारविंद को कहिए कमल सो 2 चरण कमल को हम नमस्कार दंडवत करत हैं. सो श्री गुसाई जी के श्री गुसाई जी के चरण कमल कैसे हैं जो सर्वाभीष्ट प्रदायक अर्थात सर्व अभीष्ट जो मन के इच्छित मनोरथ ताके सिद्ध करता मनवांछित पदार्थ या लोक संबंधी सकल मनोरथ तथा परलोक संबंधी सकल पदार्थ ताके देन वारे हैं. यहाँ पे श्री गोकुलनाथ जी आज्ञा कर रहे हैं कि यहाँ पे श्री मैं अपने पितृ चरण श्री गुसाई जी के दोनों चरणारविंद को मैं नमस्कार दंडवत कर रहे हूँ. क्यों? क्योंकि श्री गुसाई जी के चरण कमल जो है वो क्या है सर्व को अभिष्ट
अभिष्ट पद को दान, सर्वाभिष्ट यानी सर्व को अभिष्ट पद को जो है वो मन के इच्छित मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। यानी श्री गुसाई जी के चरण कमल ऐसे हैं कि तुम्हारी लौकिक अलौकिक सब इच्छाएं पूरी करने में आप समर्थ हैं। देखो लिखो है ना, सकल मनोरथ तथा परलोक संबंधी, या लोक संबंधी सकल मनोरथ और परलोक संबंधी सकल पदार्थ देवे वाले श्री गुसाई जी के चरणारविंद हैं, और मैं यासु उनको दंडवत करूं हूं। वहां पुष्टि भक्तन को या लोक संबंधी पदार्थ कौन से और परलोक संबंधी पदार्थ कौन से, सो कहत हैं। अब अपन यो देखे जाए कि भाई हम तो पुष्टि मार्ग में हैं, तो हमको लौकिक संबंध कौन सो और अलौकिक संबंध कौन सो, हमको ऐसे कौन से पदार्थ की इच्छा होवे कि लोक में भी हमको ये चाहिए और अलौकिक में भी चाहिए। तो वाको भी खुलासा करते हुए श्री गोकुलनाथ जी यहाँ आज्ञा कर रहे हैं, जो या लोक संबंधी पदार्थ को स्त्री पुत्र धनादिक तहा पुष्टि भक्त होए के स्त्री पुत्र धनादिक की अपेक्षा क्यों करत हैं, आको कारण कहते हैं। अब कोई यूं कहे कि भाई अपन पुष्टि भक्त हैं तो भाई तुमको लोक की इच्छा कौन सी है, तो श्री गोकुलनाथ जी पहले कह रहे हैं कि भाई लोक में तो स्त्री चाहिए, पुत्र चाहिए, धन चाहिए, सब कुछ चाहिए। फिर एक प्रश्न यहाँ में खड़ो कियो, तो कि भाई पुष्टि जीव होके पुष्टि जीव स्त्री पुत्र धन इन सब की इच्छा क्यों करे, वो स्त्री पुत्र धन की इच्छा पुष्टि भक्त क्यों करे वो, तो वाको कारण भी यहाँ पे बता रहे हैं कि संपूर्ण विश्व के विषय यावत जीव योनि है, तीन सबन में स्त्री पुत्र और धनादिक पदार्थ प्राप्त होते हैं, तो इन वस्तु में श्री गुसाई जी की विशेष प्राप्ति करत है। जो तुम श्री गुसाई जी के चरण कमल को नमस्कार करत हो, कहा श्री गुसाई जी के चरण कमल के अनुग्रह से जो स्त्री पुत्र धनादिक प्राप्त होते हैं, सो सबन से भिन्न और अलौकिक हैं। पूर्व वाक्य अपन ने ले लियो है, वहां में ये समझा रहे हैं कि भाई या धरती के अंदर, या धरती के विषय जितने भी योनि वाले हैं, चाहे वो प्राणी होए चाहे मनुष्य होए, कितने भी जीव हैं यहाँ पे, उन सबके पास स्त्री पुत्र और उनकी संपदा सब कुछ हो ही है, सबको अपने अपने भाग्य के हिसाब से सब कुछ मिले है। तो फिर पुष्टि भक्त होके इन चीजों से वंचित क्यों रहे, और वामे भी अगर पुष्टि जीव श्री गुसाई जी के चरणारविंद के दंडवत करते भय, चरण कमल को आश्रय करते भय, जब अपने स्त्री पुत्रादिकन की आशा रखो या मत रखो, तुमको ये चीज मिलनी है, समझ में आई, तुम आशा रखो या मत रखो, तुमको ये चीज मिलनी ही है, क्योंकि हम जीव मात्र हैं, तो ये सारी संपदा तो हमको मिलनी है। तो तब श्री गुसाई जी के चरणार बिंद के पास तो होती भी अगर वो चीज हमारे पास आई, तो वो चीज अलौकिक और सबसु भिन्न हो जाएगी। देखो अपन ये बात या में थोड़ो विशेष ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि समझना अपन को ये है कि जैसे ब्रह्म संबंध लियो अपन ने, तो ब्रह्म संबंध लेवे के समय अपन ने क्या विनती करी कि मैंने अपनो घर, अपनो पुत्र, अपनी स्त्री, अपने देह, अपनो प्राण, इंद्रिय सब कुछ मैंने श्री कृष्ण को समर्पण कर दियो, और अब मैं आपको दास हूं। तो जब ठाकुर जी के पास सु वो ही प्रसादी चीज अपन को फिर सु मिलेगी, तो वो चीज अपने लिए कुछ यूं कहे ने के गुजराती में कहे ने તમે શું ઉપરથી ટીલું લઈને આવ્યા છો, गुजराती में कहेवत है कि તમે શું ટીલું લઈને આવ્યા છો કે તમને આગળ રાખીએ એમ, कि पुष्टि भक्त तो वास्तव में टीलू लेके ही आयो है, तिलक लगा के ही आयो है ऊपर से, कि पुष्टि भक्त है तो वाके ऊपर ठाकुर जी की विशेष कृपा हमेशा बनी रहे। यासु वाके पास जो भी वस्तु आएगी तो ठाकुर जी सु होके आएगी। जैसे अपन कोई भी चीज घर में लेके आए, अपन कहे ना कि भाई सीधो अपन को वापरना नहीं चाहिए, अपने उपयोग में नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अपन ने सब कुछ ठाकुर जी को समर्पित कर दिया है, तो अब ठाकुर जी के पास जाके ठाकुर जी के सम्मुख करके फिर वो चीज अपन को वापरनी चाहिए, फिर अपने उपयोग में लेनी चाहिए, तो वो प्रसादी के रूप में अपने पास आएगी, तो वो अपन को हमेशा अच्छी बुद्धि ही दान करेगी।
अपन कोई सी भी वस्तु वापरेंगे वो ठाकुर जी के सन्मुख होके या ठाकुर जी की प्रसादी करके फिर अपन वापरेंगे, वाको वाको उपयोग अपन करेंगे, तो अपनी बुद्धि जो अन्य चीज वापर वे सो अन्य चीज अपने में उपयोग, चाहे वो खान पान होए, पहरवे ओढ़वे को होए, कहीं जावे आवे को होए, कोई को कोई गिफ्ट देवे की होए, कछु भी होए, ठाकुर जी के सम्मुख अगर वो वस्तु कर दी है प्रसादी के रूप में, फिर अपन वाको उपयोग अपन करेंगे अपने जीवन में, तो वो वस्तु अपने लिए अपन को ठाकुर जी की तरफ ही लेके जाएगी। मतलब आसुर असुर कैसे ना के मर्यादा की तरफ या असुर वृत्ति की तरफ अपन को नहीं लेके जाएगी, व्यासुर वृत्ति की तरफ अपन को नहीं लेके जाएगी। व्यासु अपन को जो भी ठाकुर जी में विनियोग करे, तो यहाँ स्त्री पुत्र धन आदि की बात करी तो कह रहे हैं कि अपन स्त्री पुत्र धन आदि जो भी है वो श्री गुसाई जी के चरण कमल को स्पर्श करके आगे बढ़े, तो अपने लिए वो सबसु भिन्न और सबसु अलौकिक होके अपने पास आवे। फिर अगर अपन वा को विनियोग कर रहे हैं, अपन वा को उपयोग अपने जीवन में कर रहे हैं, तो फिर वो अपन को कहीं भी वो अड़चन रूप नहीं बने, वो अनुकूल होके अपन को चले। तो यासु जो भी वस्तु अपन अपने जीवन में खानो पीनो पेरनो ओढ़नो जो भी अपन अपने लिए वापरे, वो सब कुछ प्रसादी करके ही वापरना चाहिए। तो यहाँ पे वही चीज बता रहे हैं कि जो ईसो तो सबन से भिन्न और अलौकिक है, जो श्री प्राप्त होता है सो भगवत सेवा परायण गुणगानादिक तथा सेवा भजन की सहायक हो, यानी अपने पास जो श्री यानी अपने पास जो द्रव्य भी आएगो वो भी अपन को अपनी बुद्धि मलिन नहीं करेगो। अपन बात द्रव्य सु ही कछु सामग्री आदि राखे ठाकुर जी को भोग धरे या खावे, तो फिर अपनी बुद्धि मलिन नहीं होगी। वो द्रव्य अपने घर में है तो भी वो अपने घर को कछु नुकसान नहीं पहुंचाएगी। नहीं तो तुम ध्यान रखियो कि तुम्हारे कोई भी पैसा आयो हो ऐसो, तो मान लो कि कोई कोई को जीव बाल के तुम्हारे पास आयो हो, तुमको खुद को पता नहीं है, लेकिन वो पैसा ऐसे ऐसी तरीका से आयो हो, कोई असुरत्व वालो होए वो द्रव्य, तो भी वो अपने घर में या प्रकार को नुकसान करे है। घर में कलेश होनो, अपन को रोगादि नड़नो, या आकस्मिक कोई ऐसी चीज बन जानी, घटना घट जानी, तो ये कछु अपने द्रव्य को अलौकिकता घटत घटत भई है, यासो या में अपन को ये सब द्रव्य परेशानी करे है। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि जो श्री अपन को जो प्राप्त होगी, जो द्रव्य या वासु अपना जो स्त्री पुत्रादिक भी जो अपन को प्राप्त है, वो भी अपन को अपनी शोभा बढ़ावे वाले है, अपनो यश। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो श्री प्राप्त होते हैं सो भगवत सेवा परायण गुणगान आदि तथा सेवा भजन की सहायक हुए हैं, परम भगवदीय होते हैं, केवल लौकिक खान पान विषय भोगादिक नहीं होते हैं। यानी हमको जो द्रव्य प्राप्त भयो है वो सिर्फ लौकिक में व्यय करने के लिए नहीं प्राप्त होगो, यहाँ पे अलौकिक में और भगवत सत्संग में और ऐसे में अपन को सहायक होएगो, क्योंकि श्री गुसाई जी के चरणारविंद को स्पर्श याको भयो है। और लौकिक प्रारब्ध करी के जो स्त्री होए सो तो केवल विषयिणी तथा आप स्वार्थी तथा भगवत धर्म में प्रतिबाधिका प्रतिकूल कलहदायक होए, और श्री गुसाई जी के चरण कमल के प्रत्यय से अलौकिक भगवदीय मिले। यहाँ पे मतलब वो बहुत सटीक रीत से सुंदर रीत से श्री गोकुलनाथ जी आज्ञा कर रहे हैं। यूं देखे जाओ तो स्त्री को कलहदायक विषयिणी और यही प्रकार से स्वार्थी भगवत धर्म में प्रतिबंधित प्रतिबंध करवे वाली, ये इन सबन सु या प्रकार सु स्त्री प्राप्त हुए है, और पुत्र भी ऐसो ही होवे है कि धन को व्यय करवे वालो ये सब। लेकिन यहाँ पे श्री गुसाई जी के चरण कमल को अपन को आशीर्वाद मिलो भयो है, अपन ने दंडवत किए हैं साथ में, तो या प्रकार सु आपको अलौकिक ही मिले हैं, सर्व सुखदायक होवे है और पुत्रादि को लौकिक नहीं हुए हैं।
तो लौकिक पुत्र तो भगवत धर्म में बाधक रूप है, लौकिक पुत्र भगवत धर्म में बाधक बन जावे हैं, ताकि अलौकिक परम भगवदीय भगवत धर्म परायण भगवत भक्ति परायण सेवा सहायक अनुकूल होए प्रतिकूल ना होए। और वो धनादिक जो लौकिक प्राप्त होएगो सो तो काम क्रोध मद लोभ मोहादिक को प्राप्त करेगो। अगर जो धन है वो भी लौकिक प्राप्त हो अगर अपन को, तो वो अपने घर में सिर्फ काम क्रोध लोभ मोह इन्हीं चीजन से अपन को घेर लेवे। लेकिन श्री गुसाई जी के चरण कमल को आज्ञा लेके दंडवत करके अपन आगे बढ़े, तो श्री गुसाई जी कृपा करके अपन को ये सब चीज अलौकिक रूप वाली बनके और अपन को ठाकुर जी में भगवत धर्म में सहायक होए या प्रकार से अपन को प्राप्त हुए हैं। तो ये श्री गुसाई जी के दोनों चरणारविंद को प्रताप यहाँ पे श्री गोकुलनाथ जी ने बताया। अभी ये मंगलाचरण को भावार्थ ही चल रहे हुए हो, अब ये मंगलाचरण को भावार्थ पूरा नहीं भयो है यहाँ पे, विवाह के बाद अभी सर्वोत्तम जी तो चालू होएगा। फिर बता रहे हैं कि भगवत सेवा गुरु सेवा भगवत भक्तन की सेवा में गौ ब्राह्मण आदि के विनियोग में नहीं होएगो, तो लौकिक विषय भोग खान पान में कुटुंब आदि के पोषण में राजद्वार में उठेगो, भगवत विनियोग में नहीं होएगो। यानी अगर श्री गुसाई जी के चरणारविंद में अपन दृढ़ करके या दंडवत करके अपन आगे नहीं बढ़े हैं या उनके आशीर्वाद से अपने कार्य शुरू नहीं भये हैं, तो ये सारो जो धन है वो धन ठाकुर जी में भगवत भक्तन में भगवत भजन में नहीं लगेगा। तो कहाँ लगेगा? तो कह रहे हैं ये लौकिक द्रव्य है, तो कहाँ लगेगो? तो कि लौकिक खान पान में लगेगो, कुटुंबादिकन के पोषण में लगेगो, फिर और कहाँ जाएगो? पहले तो राजद्वार हते, राजद्वार में उठेगो। जैसे अपन अभी टैक्स भरे हैं तो टैक्स तो भरना चाहिए, तो वो टैक्स के सुभी ज्यादा अपन को कोई अन्य ऐसो आ जावे जहाँ में अपन को पैसा भरने पड़े हैं और भगवत विनियोग नहीं होएगो। तो कहने को मतलब है कि अगर श्री गुसाई जी की कृपा से अपन को ये सारी चीजें प्राप्त हुई तो ये सब भगवत विनियोग होंगी। लेकिन अगर जो नहीं हुई, मान लो कि अपन ने गुसाई जी के आशीर्वाद प्राप्त नहीं किए और अपन ऐसे ही शुरू कर रहे हैं या फिर कोई भी कार्य अपन प्राप्त कर रहे हैं, तो वो सब कछु व्यर्थ हो जाएगा, लौकिक में ही लगेगो, ये कहीं भी भगवत धर्म में नहीं जाएगा। तो यासु यहाँ पे कह रहे हैं कि और जो श्री गुसाई जी की कृपा से धनादि की प्राप्ति होगी, सो तो आदि दैविक भगवत सेवा उपयोगी गुरु सेवा उपयोगी भगवत भक्तन की सेवा में उपयोगी होगी, फिर भगवत भक्त में होगी, भगवत भजन में होगी, भगवत सेवा में उपयोगी होगी, तो और काय में होगी? तो कह रहे हैं कि ब्राह्मण आदि अलौकिक में भी ये उपयोगी होगी। यानी ब्राह्मण आदि को दान दक्षिणा करनी है तो वहां में भी ये सुंदर धन है वो अपनो वपराएगो। अगर जो लौकिक धन है तो ये ठाकुर जी में विनियोग नहीं हो पाएगो। जैसे वार्ता प्रसंग तुम लोग तो सब ठाकुर जी कृपा से 254 वैष्णव की वार्ता जी को बहुत गहन रीत से वांचन और पान करो हो, तो कई जगह पे श्री ठाकुर जी सबसे पहले अपन देखें तो ठाकुर जी जब व्रज पधारे, जहाँ ठाकुर जी श्रीनाथ जी को ऊर्ध्वभुजा को प्रागट्य हो चुको है और श्री ठाकुर जी की आज्ञा से ही आप उनको प्रकट करने के लिए व्रज पधारे हैं, गोपालपुर पधारे हैं। तो गोपालपुर में आवे के बाद में आपने आन्योर पधारे जब, तो आन्योर में सधु पांडे ने विनती करी कि कछु अरोगो, तो सधु पांडे ने आपके साथ में पधारे हुए दामोदरदास हरसानी जी और कृष्णदास मेघन ने क्या कही कि श्री महाप्रभु जी अपने सेवकन के बिना और कोई को भी कछु भी अंगीकार नहीं करें। क्या कही कि श्री महाप्रभु जी आपके जो सेवक हुए ने उनको ही द्रव्य सामग्री भेंट आदि सब कुछ स्वीकार करे हैं और कोई को भी भेंट आदि स्वीकार नहीं करे हैं। तो या को मतलब ये भयो कि श्री महाप्रभु जी आप भी अपने पास आवे वाले द्रव्य को शुद्धिकरण करते रहे, यानी वैष्णव को ही
भेंट अपन को लेनी, ये आग्रह है। और यही आग्रह जो हमको भी हमारे बड़े ने सिखायो है कि जो वैष्णव होए ने वाको ही द्रव्य अंगीकार करनो, अन्य को द्रव्य अंगीकार नहीं करनो। क्योंकि ये द्रव्य ही ऐसो है जो अपनी मति बिगाड़े है, और जहां मति बिगड़ गई वहां सब कार्य बिगड़ गए। या द्रव्य अच्छो होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। यहाँ पे यही बता रहे हैं कि अगर तुम्हारा द्रव्य अलौकिक है तो वो भगवत सेवा में, भगवत भक्तन की सेवा में, भगवत गुणगान की सेवा में और ब्राह्मण आदि की सेवा में भी वो वपराएगो, विनियोग होएगो। और प्रतिदिन प्रति उत्सव अलौकिक भगवत भक्तन संबंधी गुरु सेवा, भगवत सेवा संबंधी कार्य में मनोरथ उपजे। देखो, द्रव्य अच्छो होएगो तो अपन वाही द्रव्य सु सामग्री लेके आएंगे, वाही द्रव्य सु रसोई करेंगे, वह सामग्री को अपन भोग धर के और अपन खाएंगे। तो द्रव्य भी अलौकिक, दूसरो सामग्री होकर ठाकुर जी अंगीकार करेंगे, फिर वाको महाप्रसाद अपन लेंगे। तो अपनी बुद्धि इतनी निर्मल होगी कि आगे से आगे अपन को ठाकुर जी के मनोरथ करवे की भी इच्छाएं होंगी, यानी अपने हृदय में मनोरथ रूपी तरंग भी उठेंगे। और जो द्रव्य अच्छो नहीं होएगो तो अपनी बुद्धि निर्मल नहीं होगी, और बुद्धि निर्मल नहीं होगी तो यानी मेरे साथ ऐसो कियो, मैं या को यूं कर दूंगा, मेरे या तो दाव देख रहा हूँ, मेरा मौका मिलेगा तो मैं या के ने ये उड़ा दूंगा ना वो उड़ा दूंगा, यानी लोगन को बुरो करवे की ही अपने मन में विचार सरणी आती है। अच्छे विचार नहीं आवे, अच्छी सोच अपनी नहीं होवे, क्योंकि बुद्धि गलत द्रव्य सु जैसो खान पान करेंगे ऐसी बुद्धि होगी। एक प्रसंग है, राजा को प्रसंग है एक, मतलब वार्ता कह सके अपन, या को कोई 284 वैष्णव की वार्ता नहीं है, लेकिन एक साधारण वार्ता जैसे अपन बच्चान को कहें ऐसी वार्ता है। तो बुद्धि के ऊपर से मुझको ये वार्ता समझ में आई कि कैसो खान पान करवे सु वास्तव में ऐसी बुद्धि हो जावे है। ये आप या वार्ता सो अपन को समझ में आवे। एक राजा है, राजा को रोज सपना में बहुत सारो वाको पूरो राज्य ने पानी में डूब गयो, और ने तहस नहस हो गयो, सब खत्म हो गयो, और ऐसे ऐसे ने सपना आवे। तो एक एक दिन दो दिन तो डर गयो, भाई का भयो, नींद आ गई, धीरे 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 वैद्य को सब बुलायो, दवाई कराई, कछु फर्क नहीं पड़ो। धीरे धीरे वाकी नींद ही बंद हो गई, क्योंकि वो सोवे और वाको यही सपना दिखे, वो सोवे और वाको यही सपना में आवे कि वाको पूरो राज्य डूब गयो है, पूरो राज्य डूब गयो, कछु बच्चों नहीं, खुद भी डूब गयो वाके अंदर। तो कहे कि भाई ये क्या बात है, रोज ऐसे वो एक ही सपना रोज आवे वाको। तो कि भाई ये सब क्या हो रहे हो है। तो मावा को जो दीवान हतो, वो दीवान ने सोची कि भाई या में कहीं तो कछु गड़बड़ हो रही है, इतनी वैद्य की दवा दे दी, वैद्य भी मतलब थक गए हो कि या की कोई वो है ही नहीं, क्या कहना है, निकाल नहीं आ रहा है, या को या मर्ज को या बीमारी की कोई दवा नहीं मिल रही है। राजा ठीक ही नहीं हो रहा, दिन प्रतिदिन राजा एकदम दुबलो पत्तो हो गया, क्योंकि नींद बंद हो गई, नींद बंद हो गई तो खाना बंद हो गया, न खा सके न सो सके। तो दिन प्रतिदिन राजा ने तो खाट पकड़ ली। तो जो जो खातो तो वामे भी फिर नींद आवे, तो वाको वही सपना आवे कि मेरो राज्य डूब गयो है, मैं बर्बाद हो गयो हूँ, मैं खुद भी डूब गयो, जल ही जल है चारों तरफ। दीवान ने सोची कि भाई ये कहीं गड़बड़ हो रही है। फिर राजा से ही पूछी, दीवान कहीं गयो तो बाहर, तो वह आयो, फिर वहां राजा से पूछी कि भाई, मतलब सबन से पहले तो राज्य में पूछी दरबार में कि भाई कोई नयो कोई आयो है यहाँ पे, नयो कोई आयो है का, कौन कौन काम कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो, सब वाने तपास करी। फिर कोई ना कही कि भाई यहाँ पे एक नई रसोई बनाने वाली एक बाई नवी आई है। तो वाने पूछे कि अच्छा, तो आपको बुलाओ, आपको बुलाई। फिर वासु पूछी कि भाई तू रसोई बनावे है, तो के हाँ, तो डर गई कि भाई तो राजा ने रसोई बनाते हुए बुलायो कि का मेरे से का गलती हो गई होगी। तो वाने पूछी, डरते डरते पूछी कि हाँ रसोई तो मैं ही बनाऊ हूँ। तो कि तू बैठ, पहले शांति से बैठ,
और फिर बता कि तू रसोई बनाते बनाते क्या विचार करे है। तेरे को कछु दुख है यहाँ पे? तो के नहीं, मको यहाँ कछु दुख नहीं है। तो के तू फिर क्या विचार करती करती ये सब बनावे है? तो के मैं अपने गांव से यहाँ पे काम के लिए आई, यहाँ काम कर रही हूँ, वहां मेरे खेत बरसात में डूब रहे हैं। जब वहां ने ये बात करी तब दीवान ने ये बात पकड़ ली। दीवान ने कही कि अभी तुम थोड़े दिन रसोई मत बनाओ। कि ठीक है, मेरी कुछ गलती है? तो कि नहीं नहीं, तुम एक काम करो, तुम अपने गांव जाओ और अपने खेतन को बचाओ जाके, कि बरसात के सीजन है, बरसात में पानी गिरेगा, मेरे सारे खेत खराब हो जाएंगे। अब राजा को ये कही कि भाई तुमको कछु भी नहीं भयो है, तुम मैंने याने जो ये जो विचार करती भाई, अपने दुख को विचार करती भाई, ये रसोई बनाती थी और वो रसोई तुम खाते थे। यासु, तुमको ऐसे विचार आए कि तुम्हारो राज्य डूब गयो, क्योंकि जैसे खायो, जो चीज खाई वो वाकई बुद्धि में आई, जैसो खान पान करें ऐसी ही बुद्धि बने। यानी एक रसोई बनावे वाले हो क्या विचार कर रहे हो है, वही असर इतनी दूर तक लोगन तक होवे, तो तुम विचार करो कि ये बाहर को खान पान करने वाले तो बहुत दूर की बात है, चलो उनकी तो बुद्धि की बात ही करनी बेकार है, क्योंकि वो तो जाने कौन कौन के हाथ को जाने कैसी कैसी गंदी चीजें खा ले, वासु पूरे दिमाग को सत्यानाश हो जावे। लेकिन जो घर में अपन बनावे वाले जो जीव हैं, अपन लोग अपने घर वाले के लिए जो रसोई वाली बनावे हैं, ठाकुर जी को भोग धरवे के लिए भी बनावे, तो वो भी अपन को बहुत समझ विचार के बनाना चाहिए, भगवत गुणगान करते हुए बनाना चाहिए, ताकि अपनी बुद्धि तो निर्मल रहे, साथ में वाकु जो खा रहे हैं उन सबकी बुद्धि भी निर्मल रहे। भगवत गुणगान करते हुए बनानी चाहिए। या को तो बहुत बढ़िया एक प्रसंग श्री सुबोधनी जी में ही ये ठाकुर जी की जो ये का है उखल बंधन वाली लीला है, वहां में शुरुआत में श्री यशोदा जी को जो पूरा वर्णन आयो है, बहुत ही गजब को इतनो सुंदर सटीक वस्तु हमें श्री महाप्रभु जी ने बताई है। यानी अपन को ये चीज दृढ़ हो जाए कि हम जब रसोई बनावे तब हमारी भावना, हमारे विचार इतने शुद्ध होने चाहिए, ताकि ठाकुर जी भी प्रेम से अंगीकार करें और वाको महाप्रसाद लेने वाले भी वो अपनी बुद्धि की सब सब चीज उनको अच्छी ही सूझे। ऐसे मतलब ऐसे विचार अपने अंदर होने चाहिए, ताकि जिनके यहाँ ठाकुर जी नहीं विराज रहे फिर भी वो ऐसी सुंदर भावना से बनावे, और चरणामृत और प्रसादी मिश्री का पधरा के भी वाको प्रसाद करके सबन को लिवावे, तो ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि આપણે अपन से सुबोधनी जी को एक प्रसंग ले रहे थे श्री यशोदा जी को, जहाँ से अपन को ये पता चले कि अपन जो भी कार्य करें वो अपन को भगवत गुणगान करते हुए ही करने चाहिए। तो वाकई लिए सुंदर प्रसंग है कि श्री यशोदा जी दधि मंथन कर रहे हैं। दधि मंथन करते हुए आपको पूरा प्रकार बहुत विस्तार से दिए हुए श्री सुबोधनी जी में अपन थोड़ा सूक्ष्म रीति से समझेंगे कि ठाकुर जी ने जो ये गुणगान को प्रकाश महाप्रभु जी ने जो बताया है, वाको प्रकार ये है कि ठाकुर जी की सारी लीलाएं जो भी आपने बाल लीला जो करी है, उन लीला को गान करते हुए और श्री यशोदा जी दधि मंथन कर रही हैं, और दधि मंथन करते करते और इतने पसीना सु तरबतर हो गए कि ठाकुर जी ओढ़ रहे थे। तो ठाकुर जी ने विचार किया कि अरे मेरी माँ इतनी थक गई है, तो या को जो परिश्रम है, यानी जो ये माखन निकाल रहे हैं और इन्हें परिश्रम कर रहे हैं मेरे लिए, तो मैं इनको अंगीकार करके और इनको सनाथ करूं। तो ये विचार करके ठाकुर जी उठ के पधारे। जब तक वो गुणगान कर रहे थे, लेकिन जब पसीना आ गए, थक गए न, तब उनने गुणगान छोड़ दिए। गुणगान छोड़ के फिर वो मंथन करने लग गए कि अरे बहुत देर हो गई है, जल्दी जल्दी करो। जैसे अपन सवेरे उठे न,
तब अपन मस्ती से धीरे धीरे अमुक बार काम कर रहे हो, फिर घड़ी देखे, अरे बाप रे इतने बज गई, चलो जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, तो अपन सब काम फटाफट फटाफट करने लग जाओ। तो वहां समय फिर अपन को कोई पाठ याद नहीं आवे, कोई गुणगान याद नहीं आवे, अपन को खाली घड़ी की टिक टिक सुनाई देती है कि अरे जल्दी इतनी देर हो गई, इतनी देर हो गई, जल्दी करनो, या को ये देनो, या को वो करनो, या अभी ये बाकी है, अभी ये बाकी। तो अपना दिमाग बिल्कुल घड़ी के तरफ, समय जा रहे हो, इतने समय तक में मेरे को इतना काम कर लेना है, वहां समय अपन को वही सूझते हो, वही विचार आते हो। लेकिन यहाँ पे भी मतलब यशोदा जी को भी यही भयो, अरे मैं इतनी धीरे धीरे गाते गाते मैं ये कर रही हूँ, क्योंकि वो गान कर रहे हो तो मस्ती से वो दधि मंथन करते जा रहे हैं धीरे धीरे। फिर इन्हें एकदम से उनने सोची कि अरे मुझको देर हो जाएगी, अभी तो मुझको और भी काम बाकी है करके, तो जल्दी जल्दी दधि मंथन करने लग गए। और जल्दी जल्दी दधि मंथन क्यों, तो वो पसीना तो तरबतर हो गए, और गुणगान छूट गयो, गुणगान गौण हो गयो, गुणगान तो चालू होतो लेकिन गौण हो गयो, धीमो हो गयो, मुख्यता हो गई काम की, कि भी काम करनो है, जल्दी करनो है, तो मुख्यता वाकी हो गई। तो वो ठाकुर जी ने आके सबसे पहले मथनी रोक दी, वो जो दधि मंथन कर रहे थे ना, वो दधि मंथन रोक दियो, और वाके बाद आपने भूख लगी है करके आप स्तनपान करवे लग गए। यशोदा जी ने हमको बहुत प्रेम से, बहुत ही अद्भुत श्रीमस्तक पे हाथ फेरते भय, और इन्हें ठाकुर जी को गोद में पधरा के स्तनपान कराया, और स्तनपान कराते भय भी खूब आनंद से उनको दर्शन करती जा रही है। और माथा पे, केश पे, अपन जैसे बच्चा अपनी गोद में सोतो है तो कैसे बाल पे हाथ फिरावे, ऐसे श्री यशोदा जी भी ठाकुर जी को उनके केश में, श्रीमस्तक पे हाथ फिरा रहे हैं। अचानक से उनको याद आया, अरे मैंने तो दूध रखो है सिगड़ी पे, और दूध उतार में जानो, और उबलने वालो है, या उबल रहे है, या उफन चुको है। तो वो सोच के उनने क्या किया, झट से ठाकुर जी जो स्तनपान कर रहे थे, ठाकुर जी को स्तनपान कराते छोड़ के, और उन्हें जमीन पे पधरा दियो, और जमीन पे पधरा के सबसे पहले वो दूध जो रखो तो आपको उतारने के लिए चले गए। ठाकुर जी को छोड़ के दूध के पास गए, वहां खुलासा कियो वो है श्री सुबोधनी जी में, कि जो दूध है वो भी श्री ठाकुर जी के विनियोग के ही लिए उनने रखो है। वहां पे नाम दियो तो कौन सी गाय को नाम दियो तो भूल गई मैं, बहुत ऊंची गाय है, जाको दूध बहुत पौष्टिक होवे, जैसे अपन कहे ना गिर गाय में दूध बहुत सारू, तो वो उनकी वो गाय को भी कुछ नाम तो भूल गई मैं, याद नहीं आ रहा है। तो वो इतनी उत्तम गाय है कि जाको दूध बहुत पौष्टिक हो बच्चा के लिए, तो वो बहुत कम मिले ऐसे गाय। तो ऐसे गाय को जो दूध है वो यहाँ पे जसोदा जी ने रखो है, और वो दूध उकालवे रखो थे। अब वो दूध अगर उफन के गिर जाएगो तो आपको सार सब चलो जाएगो, फिर ठाकुर जी को कहाँ रोगाएंगी, वो विचार करके वो दौड़ी वहां पे दूध उतारवे के लिए। ठाकुर जी को आई गुस्सा, तो मुंह को छोड़ के दूध के पास क्यों गए। ठाकुर जी ने कहा कि वो माखन जाम में वो दही मंथन कर रही थी, वो माखन इतने बड़ो जो घड़ा तो वो मट्टी को घड़ा, तो वहां में पत्थर मार के ठाकुर जी ने वो मथनी तोड़ दी, पत्थर मार के मथनी तोड़ दी, और मथनी तोड़ के और वहां में से जो भी माखन आ दिया तो वो सब बह गयो, बहा दियो सारो। यही चीज अपन को समझ की है, ठाकुर जी ने न खुद अरोगो, न ग्वाल बाल को दियो, न बंदरन को दियो, लेकिन उनने वो सब चीज बहा दी, सब खराब कर दी, कोई के भी खावे लायक नहीं रखी। और आप खुद जाके अंदर पधार गए, और वहां जाके अगले दिन पहले को, एक दिन पहले को जो माखन विराज हो तो वो अरोगे लगे, तो कि भाई ठाकुर जी ने वो ताजा माखन क्यों नहीं अरोगे, वहां मथनी में भी तो श्री यशोदा जी निकाल रहे थे इतनी मेहनत करके माखन, वो क्यों नहीं अरोगो। अरे आपने नहीं खायो कोई बात नहीं, ग्वाल बाल को खवा देते। मछली टूट के सब बिखर तो गई थी, पर वहां में जो जितने भी टुकड़ा हो मछली में तो आगे होगा ना माखन, वो माखन ग्वाल बाल को क्यों नहीं खवाए। चलो ग्वाल बाल को नहीं खवाए, बंदरन को खवा देते, अब तो सबको खवावे हैं। फिर ये माखन ठाकुर जी ने क्यों नहीं अरोगायो, क्यों नहीं खवायो कोई, महा खुलासा दियो है।
कि जब यशोदा जी ने दधी मंथन करवे की उतावल करी और उनने गुणगान गौण कर दिए, ये शब्द समझने की जरूरत है। जब उन्हें गुणगान गौण कर दियो और काम की मुख्यता कर दी, तब वो जो वहां में जो चीज बन के आई है खावे की, जो माखन है, जो छाछ है, वो सब कछु गुणगान रहित को आसुरी हो गयो। और आसुरी हो गयो यासु न आपने आरोग्यो, न ग्वाल बाल को दियो और न ही बंदरन को खवा। वो आपने बिल्कुल व्यय कर दियो, व्यर्थ कर दियो। ये कोई के भी खावे लायक नहीं है, क्योंकि जो भी खाएगो बाकी बुद्धि खराब होगी। अब यासु विचार कर लेना चाहिए कि अपन जब रसोई बनावे जाए तब अपनी बुद्धि कहाँ हो है, अपनी बुद्धि कहाँ हो है, ये अपन को समझ लेवे को है। यानी यहाँ पे यही बता रहे हैं कि जब श्री गुसाई जी के और श्री महाप्रभु जी के सन्मुखता प्राप्त करके, और जब अपन को जो भी चीज मिले है वो अलौकिक ही है, और वाको ही अपन के पुष्टि जीवन में वाको विनियोग उपयोग होना चाहिए। ऐसे यहाँ पे बता रहे हैं कि ठाकुर जी के लायक जो द्रव्य आएगो वासु अपन जो खान पान आदि अपन करे हैं, तो अपनी बुद्धि भी निर्मल रहे है, और वो अपन को प्रेरित करे है कि अपन कछु मनोरथ करें उत्सव आदि के लिए, अपन ठाकुर जी के लिए कछु सेवा उपयोगी अपन कछु वस्तु लेके आवे, कोई भगवत सत्संग को कछु मनोरथ करावे, कोई ठाकुर जी के मनोरथ करावे, या कोई ऐसे जगह पे अपन दान दक्षिणा करें जहां सब है वैष्णवन को सुख होवे, ठाकुर जी को सुख होवे, या ब्राह्मण आदि में दान दक्षिणा करें, तो ये सब बातें अपन को हृदय सु प्रेरणा देवे। जब कब देवे, जब अपनी बुद्धि निर्मल होवे है। तो यहाँ पे कहें कि अन्यत्र खर्च नहीं होए, या प्रकाशो श्री गुसाई जी के चरण कमल के प्रताप से स्त्री पुत्र धनादि की या लोक संबंधी प्राप्ति होए, सो परम अलौकिक प्राप्ति होत है। ताते श्री गोकुलनाथ जी आप श्री गुसाई जी के चरणारविंद को नमस्कार करत हैं। अब श्री गुसाई जी के चरणारविंद के प्रताप से जो परम अलौकिक परलोक संबंधी पदार्थ सिद्ध होते है, सो परम अलौकिक अनिर्वचनीय है। अभी तक अपन ने क्या देखियो, लौकिक के जो चीजें हती वाको सामर्थ्य कितनो बढ़ जावे, श्री गुसाई जी की कृपा सु, श्री गुसाई जी के चरणारविंद के प्रताप सु अपन ने सबसे शुरू में देखियो ना कि आपके चरणारविंद क्या है, पदाम्बुज है, कमलवत है, मतलब अरविंद और अम्बोज दो नाम है कमल के। ऐसे सर्वाभिष्ट सर्व को जो अभिष्ट है, ऐसो दान देवे में समर्थ, वाकु ऐसे मनोकामना पूरी करवे को सिद्ध करता, मनवांछित पदार्थ देवे के सामर्थ्य वाले आपके चरणारविंद हैं। तो हमें लौकिक में बता दियो स्त्री पुत्र और धन क्या प्रकार से प्राप्त होंगे, और अपन को अगर वो ठाकुर जी के सम्मुख में नहीं भय हैं, तो लोक में अपन को कौन सी तरफ खींच के ले जावे, और अलौकिक में अपन को क्या भगवत सेवा में उपयोग करावे, भगवत गुणगान में उपयोग करावे, ठाकुर जी के लिए सुंदर मनोरथ करवे की प्रेरणा करें अपन को। तो ये सारो लोक संबंधी चीज के लिए बतायो। अब परलोक संबंधी क्या प्राप्ति करावे हैं श्री गुसाई जी, वो यहाँ पे बता रहे हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि परलोक संबंधी सो काहे थे, जो परलोक संबंधी पदार्थ की और साधन ते जो सिद्धि होत है, सो तो स्वार्थाधिक की प्राप्ति तथा 4 प्रकार की मुक्ति की प्राप्ति होत है। अब परलोक में अगर सीधी रीत से अपन देखे जावे ने, तो लोग बाग क्या इच्छा करें, साधारण जीव मर्यादित जीव क्या इच्छा करे कि भाई हमें आ बधा भवसागर में छूटीए, हमने मोक्ष मड़ी जाए तो सारो। तो मोक्ष लेवे के लिए तो हमें भी पुष्टि भक्त तैयार नहीं है, वो मोक्ष भी पुष्टि भक्त को नहीं चाहिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर परलोक संबंधी में भी अगर लौकिक मर्यादा के जीव को विचार करें, तो वो अपनो उद्धार यानी कि अपनो कल्याण चाहे है, और वो मोक्ष चाहे है। क्यों, ये स्वार्थी वस्तु हुई, मेरे को मोक्ष चाहिए, मेरे को यह संसार में वापस नहीं आना है, यानी मैं अपनो स्वार्थ देख के ही परलोक को कछु अगर धर्म आदि कर भी रहे हूँ, दान दक्षिणा में कर भी रहे हूँ, तो मैं यही विचार के कर रहे हूँ
कि मेरे को ये सारी चीजें मेरे को मोक्ष की तरफ मेरे को आगे बढ़ा सकें, या मैं ये सब पुण्य करूंगा तो मेरे को अगले जन्म में मेरे को तकलीफ नहीं होगी, या जन्म में भी मेरे को कोई तकलीफ ना हो, या मैं परलोक जाऊं तो मेरे को कोई भी चीज मेरे पाप जो है वो मुझको बीच में अड़चन रूप ना बने। ये सारो विचार जीव परलोक के लिए भी करे, यानी यहाँ भी ठाकुर जी के प्राप्ति की इच्छा मर्यादा जीव में कभी नहीं आ सकती। ये इच्छा केवल पुष्टि भक्त में ही हो सके। तो ये इच्छा कब प्रकट हो गए? जब श्री गोसाई जी के चरणारविंद की कृपा हो गई। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि अगर जो साधारण जीव अगर परलोक की संबंधी कुछ विचार करे तो वो यही कहेगा कि मुझको 4 प्रकार की मुक्ति है, तो आप में कोई भी मुक्ति दे दो। तो पहले तो आएंगे स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा करें, लौकिक विषय भोग की इच्छा करें, ता पाछे फेरी संसार में आवागमन होते हैं, और वेद मार्ग के साधन तो जो चतुर्विध मोक्ष हैं वो हुए हैं। यानी जीव पहले तो ये इच्छा करके मैंने यहाँ पे खूब पुण्य कमाया है, अब मुझको स्वर्ग मिलना चाहिए, मैंने बहुत दान दक्षिणा कर ली, मुझको अब स्वर्ग मिलना चाहिए। और स्वर्ग में भी क्या हुआ है, वहां पे भी तो विलास ही है। स्वर्ग में भी तो यही है कि भाई ये अपनी इच्छाएं सब पूरी करो, जो लोक में अपन इच्छा कर रहे हैं वही वहां भी जाके कर रहे हैं, तो फिर स्वर्ग पाने को मतलब का है? हाँ, तो तुमको कुछ नहीं है। तो कह रहे हैं कि वासु भी बढ़ के वेद में 4 प्रकार की मुक्ति बताई गई है। अगर कोई जीव वाकई इच्छा भी करे तो वो भी वहां पे प्राप्त कर सके है, लेकिन वो जीव वहां तक अभी पहुंचे ही नहीं है कि 4 प्रकार की मुक्ति तक। तो कह रहे हैं 4 प्रकार की मुक्ति कौन कौन सी है? तो कह रहे हैं सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य। ये 4 प्रकार की मुक्ति को अधिकार अनुसार होते हैं, जाके जैसे अधिकार ऐसे प्रकार की बाकी मुक्ति मिले। अब हम क्या सालोक्य को क्या मतलब है? तो कि भाई ठाकुर जी विराज रहे हैं क्या लोक में, ऐसो ही लोक या जीव को मिल जावे तो सालोक्य की मुक्ति। ठाकुर जी जैसो लोक प्राप्त होनो वो एक मोक्ष है। ये भी मोक्ष हो गया तो का भयो कि ठाकुर जी के पास है जो बाजू में, वहां पे उनको उनके जैसो लोक मिल गया। ठीक है। सामीप्य भी ठाकुर जी के पास रहना, यानी ठाकुर जी के बिल्कुल पास में रहना। तो बिल्कुल को मतलब, बिल्कुल को मतलब ये नहीं है कि ठाकुर जी जहाँ विराज रहे वहीं हो। हाँ, हम एक ही घर में हैं, हम ऊपर नीचे कहीं भी हो, हाँ भाई हमारे साथ हमें साथे ज रहिए छिए, पर वो नीचे है हम ऊपर हैं, कितने कितने महीना तक हम एक दूसरे को मुड़ा भी नहीं देखे, ऐसा भी हो सके, भले एक ही घर में रह रहे हो तो भी हो जाए। दिन में तो ठीक महीना ही निकल जाए तब भी एक दूसरे को नहीं देखे। क्यों? क्योंकि भाई सबके चूल्हा अलग अलग है, वो रिसे रसोई नीचे अलग कर रहे हैं, हम रसोई ऊपर अलग कर रहे हैं, तो हमको जरूरत ही नहीं है कोई की एक दूसरे की। तो या प्रकार से ठाकुर जी के समीप होते हुए भी ठाकुर जी के दर्शन नहीं होना। सामीप्य मोक्ष जरूर मिल गए लेकिन ठाकुर जी के दर्शन नहीं हुए। ऐसे ही सारूप्य, ठाकुर जी जैसे रूप मिल जावे, तुम भगवान के तरह पूजा भी जाओगे, तुमको लोग पूजेंगे। या के लिए वार्ता प्रसंग याद होए तुम सब तो जरूर होएगो, धोबी को वार्ता प्रसंग आवे है। धोबी को श्री गोसाई जी ने बहुत सुंदर रीत श्रीनाथ जी के वस्त्र धोते थे, धो रहे थे, वो देखे कि कितनी सावधानी से वो धो रहे हैं। तो श्री गोसाई जी ने देखो तो कही कि भाई ने, हम बहुत खुश हैं कि तुम सेवा इतने ध्यान से कर रहे हो, तो बताओ तुम क्या चाहिए, तुम मांगो। तो जीव मांग मांग के क्या मांग सके? उनने कही कि मुकुट ठाकुर जी बना दो। उनने कहा कि मुकुट ठाकुर जी बना दो, मुकुट ठाकुर जी की तरह पूजानो। तो श्री गोसाई जी ने कही कि तथास्तु, तुमको जैसो कर्म होना है, मतलब तुमको तुम्हारी जो इच्छा है ऐसे तुम बन जाओ। आपने विचार कियो कि ये जीव अभी आ समय यूं कहते कि मुकुट ठाकुर जी के चरणार इनकी प्राप्ति करा दो, तो वो भी मैं आपको दे दे। बस जीव मांग मांग के कहा मांग सके, कितना मांग सके? माने ये कि भाई मैं ठाकुर जी बन जाऊं, मुझको भी लोग पूजे।
वास्तव में ठाकुर जी को रूप मिल गयो आको आ धोबी को। और एक गांव में एक राजा के ठाकुर जी बन गए। राजा ने इनको खूब वैभवशाली मंदिर बनवायो और इन्हें खूब खुद पूजा करें। और राजभोग आरती के समय पे वहां पे आवे और पुजारी आरती करते हैं और ये लोग सब पूरा राजमहल को दर्शन करवे आवे। ऐसे खूब ठाट सु धोबी को रखो तो चाचा जी ने एक दिन देखो कि भाई यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है यह समय में। जब देखो तो कोई न कही कि भाई यहाँ पे तो राजा के ठाकुर हैं और उनकी आरती चल रही है। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसे कौन से ठाकुर जी अकेले इतनी भीड़ जम रही है यहाँ पे। तो जैसे जाके देखियो तो आप तो अलौकिक चक्षु वाले दिव्य चक्षु वाले हैं, स्वयं चाचा हरिवंश जी। तो उनने देखियो अरे ये तो धोबी है। तो उनने मोड़ो नीचो करके मुंह हिलायो। हाँ है यूं करके उनने मुंह हिलाया ये कैसो ठाकुर ये तो धोबी है। वहां से वो निकल गया और मुंह हिलाते राजा ने उनको देख लियो। राजा ने देख लियो इतना राजा ने तुरंत पूछी कि भाई तुमने मेरे ठाकुर को देख के मुंड क्यों हिलायो। तो कहे, नहीं नहीं राजा ऐसा कुछ नहीं है वो तो ऐसे ही। तो कहे कि नहीं तुम मुझको सच्ची बात बताओ तुमने मेरे ठाकुर को देख के मुंड क्यों हिलायो। तो कहे भाई मैं कहूंगा वो तुम मानोगे नहीं तुम मेरी बात मान जाओ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कहे नहीं अब तुम पूरी बात बताओगे तभी मैं यहाँ सुझाऊंगा नहीं तो मैं तुमको यहाँ सुझावे नहीं दूंगा। तो चाचा जी ने कही कि भाई जहाँ ठाकुर को तुम पूज रहे हो वो तो हमारे श्री गोसाई जी श्रीनाथ जी को धोबी है। अरे ऐसे कैसे धोबी है हम कैसे मान लें ये धोबी है। तो कि नहीं मत मानो। तो देखो चाचा हरिवंश जी श्रीनाथ जी के वस्त्र जी साथ में लेके पधारते हैं। तो उन्हें कही मेरे पास श्रीनाथ जी को फागण को पड़ना विराज रहे हो तुम रात को वहां पे रख दो देखो ये सवेरे साफ होके नहीं आवे तो कहियो मुझको फिर तो मानोगे। तो कहे कि हाँ ठीक है। तो आपने वो वहां पे वस्त्र रख दियो श्रीनाथ जी को और ताला लगा दियो मंदिर में कोई जा नहीं सके सख्त पहरा करवा दियो वहां पे। फिर सवेरे जब गए तो देखियो तो वस्त्र तो खूब सुंदर रीत सु स्वच्छ एकदम सुघड़ता सु स्वच्छता से एक रंग सारे निकल गए और सुंदर घड़ी करके रखो हुए वस्त्र। तब चाचा जी ने कही कि देखो राजा ये धोबी ने वस्त्र धो दियो एकदम खासा करके सुंदर कर दियो। तो क्या फिर भी मैं नहीं मानू तुम मेरे को बताओ। तो चाचा जी ने दिव्य चक्षु ऐसी अलौकिक दृष्टि दी उनको कि उनने देखो कि वो धोबी और जितने भी देवी देवता हमको हुए उनको अधिकार जिनको जहां जहां हुए वह प्रकार से ऐसे देवी देवता है कि ऐसे तो हमारे यहाँ पानी भरे हैं घड़ा जल के भर भर के ले जावे ऐसे देवी देवता है काम करते हुए ठाकुर जी की प्रचारगी वो भी बहुत दूर तक। ऐसा नहीं कि अंतरंगता में प्रचारगी करते हुए कि भाई हाँ बहुत नजीक નો છે આ તો મારો રોજ નો છે એવું ना हो। यानी धोबी जब राजा ने देखे कि अरे ये तो वास्तव में धोबी है मैं आज तक धोबी को पूजा करते रहो। तब जाके चाचा जी से पूछी कि मुझको शरण लो तो उन्होंने कही कि तुम श्री गोसाई जी के सेवक हो। तो या प्रकार सु जो सारूप्य की जो सेवा मोक्ष है वो या धोबी की वजह से अपन को ख्याल आई कि सारूप्य कैसो प्रकार को रूप यानी ठाकुर जी जैसो रूप है वो ठाकुर जी जैसो रूप ही वो पाके और वो फिर भी ठाकुर जी को प्राप्त नहीं कर सके। फिर आयो सायुज्य सायुज्य को मतलब है लीन हो जानो ठाकुर जी में लीन हो जानो। इन चारों प्रकार के मोक्ष में एक बात समझ में आवे है कि ठाकुर जी की प्राप्ति कोई को भी नहीं होवे। अपन सायुज्य की गिनती करें तो कहें कि भाई अपन जल पीवे जल के बिना जीवन नहीं। अपन कितने घंटा रह सकें जल बिना 8 घंटा 10 घंटा 20 घंटा 24 घंटा 48 घंटा कितने दिन कितने घंटा अपन जल के बिना रह सके नहीं रह सके क्योंकि जल ही जीवन है। जल तो पीनो ही पड़े। वही जल में अपन अगर डूब जाए तो वही जल में अगर अपन डूब गए तो अपन को मजा आएगी अपन तृप्त होंगे नहीं होंगे। क्यों क्योंकि हमारे श्वास ही चलोगे हमारो जीवन ही नहीं बचो तो आनंद काय को लेंगे हम।
आनंद लेवे के लिए हमारो जीवन तो होना चाहिए। जल में डूब जाएंगे तो जीवन खत्म हो गया, फिर क्या बचो है अपने पास? कछु नहीं बचो। तो फिर आनंद काय को लेंगे? या के लिए अपन को सायुज्य मुक्ति भी नहीं चाहिए, क्योंकि सायुज्य मुक्ति में तो ठाकुर जी में लीन हो गए। ठाकुर जी कहाँ है? खबर नहीं क्योंकि हम तो ठाकुर जी के अंदर ही चले गए। हम तो ठाकुर जी के अंदर ही चले गए। तो न सायुज्य चाहिए, न सारूप्य चाहिए, न सामीप्य चाहिए, न सालोक्य चाहिए। हमको क्या चाहिए? वो आगे आएगा हमको क्या चाहिए। तो ये 4 प्रकार की मुक्ति प्राप्ति भय थे जीव देह क्रिया को नाश होते है, अक्षर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, कछु भगवत श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के रस को अनुभव नहीं होते हैं। यहाँ पे ठाकुर जी की प्राप्ति नहीं हुए है। और श्री गुसाई जी के चरणारविंद के प्रसाद से जो परलोक लोक संबंधी पदार्थ की प्राप्ति होते है, सो तो अत्यंत ही अलौकिक प्राप्ति होते है। तापाचे अलौकिक इंद्रिय की प्राप्ति, तापाचे श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के दर्शन की प्राप्ति, तापाचे श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के भक्तन सहित लीला के दर्शन की प्राप्ति, और तापाचे भगवत लीला रस के अनुभव की प्राप्ति, और तापाचे सर्वात्म भाव श्री ठाकुर जी विषय होए, तापाचे भगवत भाव वर्धमान होए, अरु भगवत रस पोषक जो सत्संग की प्राप्ति, अरु श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के अभिप्राय को जाने। श्री गुसाई जी के चरण आज अपन यहीं तक रखेंगे। अभी तो मंगलाचरण को भावार्थ और है, एक पेज पूरा अपनो, के बाद सर्वोत्तम स्तोत्र चालू होएगो तो अपन कर लेंगे। यहाँ पे श्री महाप्रभु श्री गुसाई जी के चरणारविंद के प्रताप से अपनो परलोक कैसे सुधरे, वाको एक प्रकार बता रहे हैं कि श्री चरणारविंद के प्राप्ति सु परलोक लोक संबंधी पदार्थ की प्राप्ति जो हुए है वो बहुत अलौकिक, वो इतनी अलौकिक है कि पहले अलौकिक देह प्राप्त होएगी, फिर अलौकिक इंद्रियां प्राप्त होंगी, फिर श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के दर्शन होंगे, फिर श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के भक्तन पूर्ण पुरुषोत्तम के तो दर्शन हो ही रहे हैं, पर आपके भक्तन के सहित लीला के दर्शन होंगे। वाके बाद अपन को भगवत लीला रस को अनुभव भी होएगो, फिर ठाकुर जी में सर्वात्म भाव आएगो अपन को, और फिर और भगवत भाव वृद्धि होगी, और वृद्धि होवे के बाद जो भगवत रस को पोषक है वो सत्संग प्राप्त होएगो, और वो सत्संग प्राप्त होवे सु पूर्ण पुरुषोत्तम के हृदय की बात अपन जान सकेंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ आई, अलौकिक देह अलौकिक इंद्रिय, फिर ठाकुर जी के दर्शन, फिर ठाकुर जी के भक्तन के साथ के दर्शन, और फिर लीला के दर्शन, व लीला रस को अनुभव, व लीला रस के अनुभव के साथ में ठाकुर जी को जो अपनो भगवत भाव है वो भगवत भाव बढ़ेगो, और भगवत भाव भगवत रस अपनो बढ़ेगो, तब अपन ठाकुर जी के मन की बात जानेंगे, क्योंकि सर्वात्म भाव सिद्ध होएगो तो अपन ठाकुर जी के हृदय की जानेंगे। श्री वल्लभाधीश की जय हो। खूब सुंदर जी खूब सुंदर वर्णन કર્યું। ब्रजभाषा इतनी मीठी भाषा બધાને સમજ પડે છે? હા પડતી છે। ખોલી નાખો, કરી દો। હા મ્યુટ ખોલી દો। હા એક મિનિટ હો, બધાને અનમ્યુટ કરી દો। દરેકને હા બધા અનમ્યુટ થઈ ગયા છો? હા જે શ્રી દંડવત પ્રણામ। દંડવત પ્રણામ। બહુ સુંદર સમજ આપી। दंडवत प्रणाम प्रभु। હા દીદી દંડવત પ્રણામ। दंडवत प्रणाम। દંડવત પ્રણામ। કેમ છો? दंडवत प्रणाम। थोड़ी मोड़ी ज्वाइन थई। પ્રણામ જીજી। दंडवत प्रणाम। જીજી दंडवत પ્રણામ। दंडवत प्रणाम। खूब खूब दंडवत प्रणाम कृपानाथ। प्रणाम दंडवत प्रणाम जीजी।
दंडवत प्रणाम जेजे। दंडवत।